Good afternoon, students. Welcome to the second lecture of your physics chapter number 4, motion in a plane. Okay, and in the last class we were discussing about some basic concepts of scalars and vectors. Today we will build upon that concepts on vectors. Okay, so in the last class we had discussed about vectors, and we had discussed about two types of vectors. One is called position vector and another is called displacement vector. Now we'll build some more concepts upon it. So what is equal vectors? What are equal vectors? Let us first understand equal vectors. Okay, so equal vectors, definition ये होगा, the two vectors will be said to be equal if and only if the magnitude of both the vectors are same, both the physical quantities are same, and direction is also same. Okay, so magnitude is same and direction is same. इसका मतलब क्या है? Let us first say that this is one vector. Okay, इसको मैं बोलता हूँ this is vector A. Okay, and there is another vector B. The length of the line of vector A is equal to length of the line of vector B. इसका मतलब ये हुआ कि its magnitudes are same. The magnitude of A is equal to the magnitude of B. Also the direction is same. दोनों vector का direction same है. तो then we will say कि ये दोनों vector equal है. Okay. अब इसी को मैं थोड़ा सा change करता हूँ, है ना? Suppose the length of the vector B is same. Length is same, but its direction is not same. तो ये these will be, then vector A is not equal to vector B. अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैं इसके टेल को उठा के इसके टेल में रख देता हूँ, वेक्टर B के टेल को उठा के वेक्टर A के टेल में रख देता हूँ और इसका इसी यानी बिना डायरेक्शन को चेंज किए इसको हम मूव करते हैं, पैरेलली इसको शिफ्ट कर सकते हैं. तो मैं अगर इसको शिफ्ट करता हूँ तो मैं अगर इसको पैरेलली शिफ्ट करता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, दैट मीन्स दिस वेक्टर B इज़ नॉट कम्प्लीटली सुपर इम्पोजिंग वेक्टर A. वेक्टर B इज़ नॉट कम्प्लीटली एकदम पूरा ढक नहीं रहा है इसको. वेक्टर B वेक्टर A को पूरी तरीके से ढक नहीं रहा है ना. अगर ये इक्वल होता तो ये पूरी तरीके से ढक देता, ये ढक नहीं रहा है. इसका मतलब है कि दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल. ओके, नाउ ये ऐसा मैं तब कर सकता हूँ जब दिस वेक्टर इज़ फ्री वेक्टर. ओके, और फ्री वेक्टर भी हम बाद में देखेंगे कि व्हाट इज़ फ्री वेक्टर. तो टू वेक्टर्स इफ दे हैव same magnitude and same direction, then they will be called equal vectors. Okay, this will be called equal vectors. Now negative of a vector. Okay, what will be the negative of the vector? The two vectors if they have same magnitude but the opposite direction, तो उसको हम बोलेंगे negative of the vector. Suppose this is not head, it is a tail and this is a head. तो यहाँ पे क्या हुआ, it is equal in magnitude but opposite in direction. तो यहाँ पे vector A is equal to negative of vector B. This is called negative vector. Okay, अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा नल वेक्टर. उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे. Okay, so we have discussed equal vectors, negative of a vector. Now what is modulus of a vector? Okay, modulus of the vector, when we are interested only in the magnitude of the vector and not on the direction, तो हम उस समय उसका modulus निकाल लेंगे. तो the modulus of a vector means the length or the magnitude of that vector only, and it is a scalar quantity. Suppose ये वेक्टर A है तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? सिर्फ ये लेंथ होगा. ओके, सिर्फ ये लेंथ होगा.
तो दैट विल बी द मैग्नीट्यूड, है ना, एंड डायरेक्शन से हमको कोई अभी लेना देना है नहीं। सो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होगा? स्केलर, क्योंकि ये ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो उसको हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसको दो लाइन के बीच में एक वेक्टर को लिख लेते हैं, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, या फिर सिंपली हम इसको ए लिख देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर व्हेन देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, है ना। इसमें क्या रहेगा? ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोल देते हैं? दिस दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। तो हमने इक्वल वेक्टर डिस्कस कर लिया, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर डिस्कस कर लिया, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर डिस्कस कर लिया। अब यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर क्या होता है? कई बार हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी की जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसका कैलकुलेशन हम स्केलर क्वांटिटी की तरफ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो फिजिकली वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एट द एंड हम एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर विच हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ अ यूनिटी, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ओके, तो यहाँ पे a unit vector is a vector of a unit magnitude drawn in the direction of a given vector. Suppose ये वेक्टर ये है, ओ ए है, वेक्टर ए है, तो एक यूनिट वेक्टर अगर मुझे इसका दिखाना है तो एक यूनिट लेंथ में एक वेक्टर मैं बना दूंगा और इसको बोलूँगा कि दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर फॉर ए। इसको हम जनरली कैसे दिखाते हैं? ए कैप से। यूनिट वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं? ए कैप से। ओके, ए कैप यानी unit vector. A unit vector in the direction of the given vector is found by dividing the given vector by its modulus. कैसे मिलता है मुझे एक यूनिट वेक्टर? सपोज देयर इज अ वेक्टर ए, तो इसको मैं क्या करूँगा? इसका यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं इसके मॉड्यूलस से, यानी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा आ यूनिट वेक्टर, है ना। अगर मैंने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, यानी अगर एक वेक्टर है, ये ए है, अगर ए वेक्टर की वैल्यू 10 जो भी यूनिट हो, एक 10 यूनिट इन अ डायरेक्शन से, इधर मैं ईस्ट बोल देता हूँ, 10 मीन यूनिट ईस्ट। ओके, एक ओ ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, उसका डायरेक्शन है ईस्ट। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसके मैग्नीट्यूड से ही। तो मैग्नीट्यूड क्या है? 10 यूनिट है। तो क्या बचा? 10 कट गया, 1 यूनिट, और डायरेक्शन तो वही है, डायरेक्शन को तो मैंने कोई चेंज किया ही नहीं। तो डायरेक्शन वो हमेशा जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल वेक्टर था उसकी तरफ ही दिखाएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1 यूनिट रहेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कैप से दिखाते हैं, ए कैप। ओके, हैविंग गॉन थ्रू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिनोट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एंड अ यूनिट वेक्टर। सपोज इफ आई वांट टू डिनोट अ वेक्टर ए, this will be equal to modulus of this vector, means magnitude of vector A and direction of a unit vector. Okay, तो इससे इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। इसका यूसेज आएगा आगे, उसको आप अभी देख लेंगे। सपोज दिस इज वेक्टर A, इट इज इक्वल टू the magnitude, this shows the magnitude and this shows the direction, because इसका magnitude क्यों है? magnitude क्या है? यूनिट है, 1 यूनिट है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, नाउ we have understood what is equal vector, what is the negative of a vector, modulus of a vector and a unit vector. Now there are certain types of vectors जिसको हम बोलते हैं fixed vectors. फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या है ना। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, तो फिक्स्ड वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है
जिसका टेल हम हटा नहीं सकते, एक जगह वो फिक्स हो गया है ना, उसको हम इधर उधर हिला नहीं सकते। सो दिस इज़ कॉल्ड अ फिक्स वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द ओरिजिन, जहाँ से वो वेक्टर चालू हो रहा है इस पर डिपेंडेंट है, और उसको हम वहाँ से उस जगह से रिमूव नहीं कर सकते। सो अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फिक्स वेक्टर और अ लोकलाइज्ड वेक्टर। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, है ना, हम लोग जब लास्ट क्लास में देखे थे कि पोजीशन वेक्टर, सपोज किसी एक का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हम हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट का टी टाइम पे पोजीशन है ए, तो इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट। ओके, सो दिस इज़ अ फिक्स्ड वेक्टर, है ना। सेम पॉइंट का, सेम ऑब्जेक्ट का अगर पॉइंट बी में पोजीशन है तो इट विल बी अगेन डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन to this. So this is the position vector. So position vectors are always fixed vectors. So now the next one is free vector. Okay, the next one is free vector. Now this free vector का मतलब क्या है, we can move those vectors parallelly, है ना, वो उसके डायरेक्शन के पैरेलल हम उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। So a vector whose initial point is not fixed is called a free vector. A vector whose initial point is not fixed is called a free vector or a non-localized vector, है ना। For example, the velocity vector of a particle moving along a straight line is a free vector. Okay, suppose एक कोई वेक्टर है, okay, उसका जो टेल है, इनिशियल पॉइंट है, हम उसको फिक्स नहीं करता, हम उसको मूव कर सकते हैं। कई बार हमारे एनालिसिस में, फ्री बॉडी डायग्राम में हम उसको जब यूज़ करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे कि भाई इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ ले लो, सपोज, है ना। तो यानी इस वेक्टर को मैं पैरेलली भी मूव कर सकता हूँ और इसके एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकता हूँ। इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दिया तो वो वेक्टर वही रहेगा, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी वही है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी वही है। या इस वेक्टर को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो ये कम्प्लीटली उसको सुपर इम्पोज कर देगा। सो द फ्री वेक्टर्स कैन बी मूव्ड एनीवेयर, सो दीज आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वेक्टर इज कॉल्ड अ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है, द वेक्टर्स, two vectors if they are acting on the same line they will be called as collinear vectors. Okay, so the vectors which either act along the same line or along the parallel lines are called collinear vectors, है ना। अगर there are two vectors, okay, different magnitude, suppose this is OA and this is PB. Okay, so this is OA vector and this is PB vector. So these vectors, these two vectors are collinear vectors, है ना, they are acting on the same line. अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है, अगर ये यहाँ पे भी है और इनका डायरेक्शन सेम है तो this is also कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, इसको पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल वेक्टर्स। सो दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो दे विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर्स। हाँ, दे विल बी नॉट बी ऑलवेज इक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा उनके मैग्नीट्यूड में। ओके, सो कोलिनियर वेक्टर्स। देन कोप्लेनर वेक्टर्स, इफ दे आर एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन, अगर एक किसी प्लेन में दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स यानी सपोज आई विल ड्रॉ अ प्लेन, है ना, तो कोई एक वेक्टर इस पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दो दे आर नॉट एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन बट दे आर इन द सेम प्लेन। अगर एक ही प्लेन में है
तो ये दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। ओके, कोप्लेनर वेक्टर्स। एक और टाइप के वेक्टर टाइप होगा को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है? कोई इनिशियल पॉइंट जिनकी दोनों वेक्टर्स की सेम रहे, यानी इनिशियल पॉइंट यहाँ पे दोनों की सेम रहे, तो ये दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। सो द वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, को इनिशियल वेक्टर्स। अब इसमें एक और होता है को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर्स का मतलब है जिसमें इनका हेड एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। सपोज एक वेक्टर ऐसा आया, एक वेक्टर ऐसा गया और एक वेक्टर ऐसा आया, तो ये टर्मिनेट एक ही पॉइंट में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर्स। ओके, सो वी हैव understood equal vectors, negative of a vector, modulus of a vector, unit vector, fixed vector, free vector, collinear vector, coplanar vector, co-initial vector and co-terminus vectors। इतने सारी चीज़ों को समझे हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे null vector। So the definition of a null vector or a zero vector is a vector which has zero magnitude एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी यानी नो फिक्स डायरेक्शन, इसको हम बोलेंगे ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। फिर से मैं बोलता हूँ, अ वेक्टर विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर और अ ज़ीरो वेक्टर। उसको डिनोट कैसे करते हैं? हम डिनोट ऐसे जनरली इससे करते हैं, है ना। तो ये नल वेक्टर है, तो हम बोले कि जब उसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है और डायरेक्शन भी आता पता नहीं है, तो उसकी ज़रूरत ही क्या है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सपोज देयर इज अ वेक्टर ओ ए एंड देयर इज अनदर वेक्टर से पी बी। सो ओ ए इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी बी, है ना। या इसको मैं अगर ओ ए is in magnitude is equal to PB, मैग्नीट्यूड इनका सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर मैं OA वेक्टर को PB वेक्टर से प्लस कर देता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ, सपोज OA प्लस PB, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। इसकी OA इज इक्वल टू माइनस PB होता है ना। अगर इसमें वापस से लगाएं तो दिस वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में ज़ीरो होगी और डायरेक्शन पता नहीं। तो ऐसा ही एक सिचुएशन आ जाता है, तो उसके लिए हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ नल वेक्टर। अच्छा, एक और ऐसा होता है कि हम इसको किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज एक कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई किए इस वेक्टर, ए नहीं लिख के मैं इसको सपोज सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिए इस वेक्टर को, सिग्मा में। ओके, और किसी वेक्टर को हम म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, ठीक है। अगर सिग्मा इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू है, अगर सिग्मा इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो सिग्मा ए प्लस म्यू बी। ओके, सिग्मा ए प्लस म्यू बी, या फिर अच्छा यहाँ पे ए ही रखता हूँ, सॉरी इसको ए ही रखता हूँ, ठीक है, सिग्मा ए प्लस म्यू बी। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा प्लस म्यू ए। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू माइनस म्यू, तो सिग्मा प्लस म्यू क्या होता है यहाँ पे? ज़ीरो हो गया, ज़ीरो टू ए। इसका रिजल्ट क्या है? अगेन इसका रिजल्ट विल बी अ नल वेक्टर, बिकॉज ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज नल वेक्टर, इसलिए हमको नल वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन ऑल दिस केसेस द रिजल्टेंट हैज़ टू बी अ वेनिशिंगली स्मॉल वेक्टर, वेनिशिंगली स्मॉल यानी ज़ीरो वेक्टर, एंड नॉट अ स्केलर। Hence there is a need for introduction of the concept of zero vector. Okay, तो ये ज़ीरो वेक्टर है। कई बार हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट नल होता है,
लेकिन वो वेक्टर नहीं होता, वो वो स्केलर नहीं होता, वो वेक्टर होता है। तो इसके लिए हमको ये कॉन्सेप्ट लाना पड़ा ज़ीरो वेक्टर का या नल वेक्टर का। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर? इफ़ ज़ीरो वेक्टर इज एडेड टू एनी वेक्टर, it will be the same vector. Okay, if a zero vector is added to any vector, suppose a null vector is added to any vector A, what will be the result? It will be the, किसी चीज़ पे ज़ीरो ऐड करेगा तो क्या मिलेगा? सेम चीज़ मिलेगा. Okay, but if it is multiplied, if a zero vector is if a constant value is multiplied by zero vector, अगर एक कोई constant value ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा? सपोज देयर इज अ कांस्टेंट लैम्डा, इसको ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला हमको? यहाँ पे भी ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर ही मिलेगा. ओके, अगर किसी ज़ीरो को यानी मैग्नीट्यूड ज़ीरो को किसी वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ज़ीरो को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन हमको एक नल वेक्टर मिलेगा. और सो कोई एग्जाम्पल, इसका फिजिकल एग्जाम्पल क्या है ज़ीरो वेक्टर का? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन इज़ अ ज़ीरो वेक्टर, है ना. अगर एक पोजीशन वेक्टर है किसी पार्टिकल का एट ओरिजिन में कोई एक पार्टिकल है यहाँ पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ज़ीरो वेक्टर. तो दिस इज़ अ फिजिकल एग्जाम्पल. द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज़ अ ज़ीरो वेक्टर. ओके, अगर एक एक्सटी ग्राफ बनाता हूँ मैं, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूँ, है ना, तो कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो वेक्टर होगी. ओके, सो दिस इज, देयर आर टू एग्जांपल्स. द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ अ ज़ीरो वेक्टर, है ना. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर ये एक्स टी की जगह वी टी ग्राफ है, तब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक ज़ीरो वेक्टर होगा. सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ physical examples of a null vector. Okay, so today's class will end this, and in the next class we'll be discussing multiplication and addition of vectors. Thank you.